यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड और मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इनहेरिटेंस की बात करें पहले हम तो मतलब पहले ढूंढते हैं हर वर्ड का। तो हम बात करने वाले हैं सॉरी इनहेरिटेंस की बात करें। सो इनहेरिटेंस इज बेसिकली पासिंग ऑफ ट्रेड्स का पास होने को कहते हैं हम इनहेरिटेंस। होप ये आपको क्लियर हो गया। ट्रेड्स के पास होने को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। क्लियर। अब ध्यान से समझेंगे हम वेरिएशंस क्या होती हैं उसको पहले। I think why I'm not able to write clearly in this, I don't know, let me see something that's wrong. इस वाले बोर्ड में शायद आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा क्योंकि मेरी ये राइटिंग का फ़र्क पड़ जाएगा। वो बोर्ड बहुत ज़्यादा पेन मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनहेरिटेंस फर्स्ट। इनहेरिटेंस इज बेसिकली पासिंग ऑफ ट्रेड्स। अब ट्रेड्स को हम कहते हैं करेक्टर्स। So basically inheritance is the passing of the characters from the parents to the next one progeny. ठीक है। Now in the chapter name the other word is the variation. Variation means changes. ठीक है। Inheritance होते हुए कई changes आ जाते हैं due to some genetic material that we called as basically we call as variations. Okay, now if we move forward, I'm going to talk about some basic terminologies that are going to come in this chapter. Okay, so let's start with it. First of all, we are going to talk about genetics. What do you mean by genetics? As I talked about जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती है। तो जेनेटिक्स होता क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं। जेनेटिक्स इज बेसिकली रिलेटेड विद जीन्स। जीन्स आर द मेन हेरिडिटी यूनिट। मीन जो कैरेक्टर्स पास होंगे वो जीन के थ्रू होंगे। This is DNA, that is double helical structure. इस शेप को हेलिक्स कहते हैं और इधर टू शेप्स है सच लाइक, तो इसलिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के एक फ्रेगमेंट को हम कहते हैं जीन। अब डीएनए जो है ना, दैट इज बेसिकली डीऑक्सी ribonucleic acid. And you know the function of the DNA? That the DNA is the one that contains the genetic information because it has the genes. Now if I talk about the DNA further, deoxyribonucleic acid, it is the main hereditary part. जो हेरिडिट करता है वो ये है। अब study of the heredity and the variation, we call it as a genetics. So basically genetic is the study of the heredity and variation. Hope it is clear to you that the genetic is the study of the heredity and variation. Genetics is basically study of heredity and variations. Quite simple concept. Hope it is clear to you that what do you mean by heredity. Easy था, समझ आ गया तो वेल एंड गुड।
Now, genetic properties or the features of an organism is characteristics and control. अब जेनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है एक ऑर्गेनिज्म की वो कंट्रोल की जाती है, करेक्टराइज्ड की जाती है बाय द जीन्स. ठीक है. द टर्म जेनेटिक वॉज कॉइन्ड बाय बी बैटिसन. टर्म वॉज कॉइन्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बी बैटिसन. फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको कहा जाता है. टर्म कॉइन्ड किसने की थी? एंड फादर किसको कहा जाता है? दोनों अलग टर्म है. फादर इज जीजे मेंडल, son called John Mendel. Okay, you have to remember this. Even it is very important kind of a question that is asked in your NEET exam too, that who coined the term and who is known as father of the genetics. Both the terms are very important. You have to remember that out. Now, moving forward, the father of the experimental genetics, who is known as father of the genetics, is this. If I talk about father of the experimental genetics, when experimental come, it is Morgan. Okay, V. Batson coined the term genetics, but it also did some extra work. That is, it is also known as father of modern genetics. I might do it in next page. Wait, एक बार क्लियरली लिख देती हूँ कौन क्या क्या कहा जाता है, तो ध्यान से देखना. If I talk about father of modern genetics, or I can say that coined the term, it is basically W. Bateson. W. Bateson. Now, if I talk about father of genetics, मॉडर्न ही आया, याद रखना. इट इज जीजे मेंडल. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल genetics, it is Morgan. So these are the terms that you need to keep in your mind. These are the terms from where the MCQs are asked many times in it, as well as in board examination. So you must note or know the topics or the names that have been provided you. So first of all, let me do something for you. So now see it carefully. एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन कहलाते थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते थे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन कहलाते थे? यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. नाउ द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, अगर ह्यूमन की जेनेटिक्स की बात करें, सो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इट इज कैरॉड. मैं बुक से देख रही हूँ कि अगर कोई डायग्राम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिले मुझे तो मैं नोट टाइम करवा दूँ. मैं मेरे पास अपने नोट्स भी है, तो 2-3 चीज़ों से मिलाकर मैं आपको लिखवाती हूँ हमेशा की तरह, और इस पर भी वैसे ही करवा रही हूँ. तो आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड while solving the questions, because many times the questions are asked from these topics. Okay, now I am going to teach you about the term heredity.
बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स रिसेम्बल्स एज वेल एज द वेरिएशन। करेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो, चाहे रिसेम्बलेंस हो या वेरिएशन from one generation to another is known as heredity. Clear to you? Now, heredity plays a very important role in formation of species. Many times this is a question. Heredity plays a very important role in formation of the species. Just explain, just elaborate. In that question you have to write out that the heredity is the transmission of the characters. It may be resemblance or the mutations or variations. Mutations नहीं, variations is more suitable रहेगा from one generation to another. अब हेरिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली, क्योंकि इसकी कहानी रिसेम्बलेंस होगी, करेक्टर्स पास होंगे, तभी तो हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे. So that's why heredity is important for the formation of a species. Hope it is very much clear to you. अब physical basis of heredity that I told you earlier even, that is gene. जो समझा चुकी हूँ वही वापस समझा रही हूँ. जिसको वो समझ नहीं आया था वो अब समझ लो. I draw it DNA. Two type of inheritance material are there, DNA and RNA. अब DNA के एक फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं? DNA का फुल फॉर्म पहले ही बताया है, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है. एक फ्रेगमेंट को कहते हैं इसको जीन. अब जीन क्या है? इसको बेसिस ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, बेस यूनिट ऑफ द हेरिडिटी कहते हैं. अब वाई इट इज नोन सो? बिकॉज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हेरिडिटी. कौन से करेक्टर ट्रांसमिट होने हैं, कौन से करेक्टर में रिसेम्बलेंस आनी है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जीन दैट दे आर inherited. Now moving forward, I am going to talk about the chemical basis of the inheritance. Physical basis of inheritance, if comes, it is gene. If comes chemical basis of the inheritance, then that is DNA. Again, listen again carefully. Gene if I talk about, मैं इसको दूसरे पेन से जीन को पहले लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली जीन नज़र तो है. जीन if I talk about, it is physical basis of heredity. Whereas if we talk about DNA, if I talk about DNA, it is, you can say it is chemical basis of heredity. Quite simple and easy to remember. Physical basis and chemical basis. Chemical DNA full. DNA is double helical structure. DNA के बारे में सब कुछ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. अब इतना ही याद रखो. मेन जो बेसिस है समझा दिया मैंने आपको, इतना ही याद रखना. ज़्यादा डीप मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे. आगे बढ़े, हम बात करेंगे अब वेरिएशंस की. सो इफ़ आई टॉक अबाउट वेरिएशंस, तो डिफरेंस आते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आएंगे, ठीक है. ठीक है. अब ये वेरिएशन है जीनोटिपिक हो सकते हैं और फिनोटिपिक हो सकते हैं. अब जी इनका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, ये क्वेश्चन आप सबके मन में आएगा ही आएगा. नहीं आया तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा. अब सुनेंगे, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए था.
मैं लड़की हूँ. So genotypic basically means gene and phenotypic means physical character. Let us take an example. Mother has a black eyes. It is of mother. Father की बात करें. It has ग्रे आइज. ग्रे लिख देते हैं. ठीक है. अब इनका अगर हम क्रॉस करें, बी बी मदर का, जी जी फादर का, तो अगर हम इसका क्रॉस करें तो हम इसे एक स्क्वायर बना के क्रॉस करेंगे. अगर आप स्क्वायर बना के नहीं करना चाहते, यू कैन डू इट सिंपली. स्क्वायर बना के सारे करोगे तो सारे करने आसान हो जाएंगे. मैं सिंपल भी सिखा दूंगी. तो बी जी एंड बी जी वुड बी देयर. ठीक है. अब ये पहला जब स्क्वायर होता है इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं. और हम देखें तो F1 जनरेशन में सारे क्या है, बी जी. नाउ हमने थोड़ा छोटा कर लेती हूँ इमेज. इफ आई टॉक अबाउट F2 जनरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, बी जी का बी जी के साथ ही करते हैं. देखिए इसमें क्या होगा, वेट. अब हमने क्या किया, कराना है हमने किसका, बी जी का इंटू बी जी. वी आर गोइंग टू डू बी जी इंटू बी जी. ध्यान से समझना. हाँ बेटा. अब इसको देखें तो इसके करेक्टर्स कितने हैं. जीन पहले अलग कर लेते हैं. एक बी है, एक जी है, एक बी है और एक जी है. ये जीन हो गए. अब पिछली बार की तरह एक स्क्वायर बना लेंगे. बी जी बी जी, तो ये बना बी 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 जी और जी जी. मैंने इसको सीधा लिखे तो क्या बना, बी बी जी और जी जी. अब कुछ टर्म ध्यान से सुनना. पहले बात करेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. ध्यान से सुनना बेटा. हाँ. होमो मतलब सेम. तो ये देखो दोनों जीन क्या है, सेम. तो ये दोनों क्या आते हैं हमारे होमोजाइगस में. ये दोनों अलग अलग है तो ये आते हैं हमारे हेटेरोजाइगस में. हेटेरो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट. ओके. ये भी तो. अब एक और टर्म की बात कर लेते हैं पहले, एलील. एलील ना पेयर ऑफ जीन्स को कहते हैं. जैसे बी जी भी एक एलील है, जी जी भी एक एलील है, बी बी मतलब जहाँ पे दो जीन है वो एक हो गई एलील. ठीक है. जो मेन बात करनी थी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक की, अब वो बात कर लेते हैं. फिनोटिपिक हमने इसमें क्या लिया था, हम ले लेते हैं कि जो ब्लैक है ना वो डोमिनेंट है. असल में तो स्मॉल ब्लैक लेंगे ग्रे वाले को भी, पर अभी मैंने आपको सीधा दिखाने के लिए बताया था. तो ब्लैक डोमिनेंट है मतलब ब्लैक अपने आप को शो करता है. पहला केस देखो फिर क्या होगा. अब ब्लैक ने अपने आप को शो करना है. दोनों ब्लैक है, ब्लैक शो करेगा अपने आप को, ये भी ब्लैक शो करेगा, ये भी ब्लैक शो करेगा. लेकिन ये वाला सिर्फ कौन सा शो करेगा, ग्रे. सो फिनोटिपिक रेशियो की इफ आई टॉक अबाउट इन दिस केस इट इज 3:1, 3 ब्लैक 1 ग्रे. ठीक है. जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है, हम जीन्स की बात कर रहे हैं. कितने बी जी हैं, कितने जी जी हैं, कितने बी बी हैं. तो 1 यहाँ पे है बी बी. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर जीनोटिपिक है. तो 1 बी बी है, 2 जी बी जी है एंड 1 जी जी है. तो दैट इज़ योर जीनोटिपिक रेशियो. आज के लिए इतना ही समझो. अगली वीडियो में ये टॉपिक मैं वापस समझा दूंगी फॉर मोर क्लैरिटी. ओके.